آئیے ہم دعوت سخن دینا چاہتے ہیں جناب حضرت محترم مولوی ربانی علی صاحب قبلہ کو یہ مائک پہ آئیں اور سلسلہ خیز بیانات سے سامعین کو مرحبا مجلہ فرمائیں. ان کے آنے سے پہلے ہم یہی شعر پڑھنا چاہیں گے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا. اور یہ سبحان اللہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور وہ کیا مرتبہ ہے، وہ کیا مرتبہ ہے وہ سے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم والا تیرا. وہ کیا مرتبہ ہے وہ سے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم والا تیرا. سر بھلا کیا جانے کوئی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. العما قہر وہ سے وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اور کیا دبے جس میں ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کیا دبے جس میں ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جناب حافظ غفران علی صاحب قبلہ. ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الذي بارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے کون نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. اور صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو. ہم آخری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم آخری فقیر ہیں یا غوث المدد. یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے برادر وقار جناب محمد عمر عرف راجہ صاحب کے دیار اقدس میں وجود سادات ملت کی آمد ہے، اور ہمارے بزرگ اور احباب حفاظ قراء سب یہاں پر موجود ہو گئے. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے چونکہ یہ مہینہ چل رہا ہے ربیع الاخر شریف کا. اس مہینے کو نسبت ہے سرکار غوث اعظم سے، اس لیے میں نے آیت کو پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کے خوف سے ڈرو، سچوں کے ساتھ. یہاں پر بات یہ نہیں سامنے آ رہی ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میاں جب اللہ سے جو ڈرنے لگتا ہے جنت اس کے پاس ویسے ہی آ جاتی ہے. آپ ذہن لگائیے، اپنے ذہن میں لگائیے. اللہ نے کیا ایسا فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب بندہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے بندہ ڈرنے لگتا ہے مصطفیٰ سے سچی محبت کرتا ہے. اللہ سے ڈرتا ہے، مصطفیٰ سے سچی محبت کرتا ہے، ان کے بزرگوں سے سچی عقیدہ رکھتا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں جنت اس کی ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں اے اللہ تو نے آگے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں جس سے سچی محبت رکھے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ہم کیا آپ نہیں چاہتے کہ غوث اعظم کے ساتھ رہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ رہیں؟ جنت میں ہر بندہ
मिलेगी, पहले उनसे सच्ची मोहब्बत करनी है। सुभान अल्लाह। वो इंसान जो सच्ची मोहब्बत जब उनसे करता है तो नई बात लोगों के साथ फरमाते हैं, जो दुनिया में जिससे सच्ची मोहब्बत करता है वो कल कयामत के साथ उसी के साथ उसका हश्र होगा। तो हम रसूलुल्लाह वाले भी हैं, हम रसूलुल्लाह वाले भी हैं, हम रज़ा वाले भी हैं, हम ताजुल सरिया वाले भी हैं, और हम ये भी कह सकते हैं हम सरदारी मिल्लत वाले हैं। हम तो ये भी कह सकते हैं, नारे हम तो तकबीर, ये भी कह सकते हैं नारे रिसालत, हम सरदारी मिल्लत वाले भी हैं, मिल्लत, हम ताजुल सरिया वाले भी हैं, हम आला हज़रत वाले भी हैं। आज लोगों को गौसे आजम से बहुत चिढ़ है, आज लोगों को गौसे आजम से बहुत चिढ़ है। कहते हैं मियाँ तुम 11वीं क्यों बनाते हो, 11वीं क्यों बनाते हो, तुम फातिहा क्यों करते हो। हमने कहा सुनो, ये जो इस्लाम मिला है ना, ये हमारे तक ऐसे नहीं आ गया। तुम्हारे बाप दादा कब्र में चले गए, मर गए, सड़ गए, जल गए, लेकिन तुम्हारी नस्लें भी इस्लाम को नहीं लेकर के आई। अगर नस्ल इस्लाम की कोई लेकर के आया है, उसमें हाथी का खून था, वो इस्लाम लेकर के आया है। हर गहरे के जरिए इस्लाम नहीं फैला है, इस्लाम हाफिज कुरान के जरिए फैला है, इस्लाम हाफिज कुरान के जरिए वो फैला है, इस्लाम अल्लाह वालों के जरिए फैला है। और देखो अल्लाह वाले किसे कहा जाता है, मैंने किताब पढ़ी जिसका नाम अखबारुल अखियार है। हज़रत साहब बैठे हो, इस किताब, ये बहुत मोहतबर किताब है, हजरत जानते हैं इस किताब के नाम, इस किताब के बारे में हजरत जानते हैं। किताब का नाम सुन लीजिए, अखबारुल अखियार। इस किताब को वक्त के बहुत बड़े मुजद्दिद शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने लिखा, और इस किताब में सरकारे गौसे आजम के बारे में लिखते हैं। कहते हैं कि सरकारे गौसे आजम की जब विलादत होती है तो एक रमजान मुबारक रहता है और आप दूध नहीं पीते हैं। फरमाते हैं कि मैंने सरकारे गौसे आजम का तकवा, मैंने जब किताबों में पढ़ा, तमाम उलमे किताबें पढ़ा, मैंने कहा अल्लाह अल्लाह, बचपने का आलम, अभी पैदाइश हो रही है, आप दूध नहीं पी रहे, आप रोजे से हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकारे गौसे आजम उस जात को कहते हैं कि पैदा हो रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, रोजा रख रहे हैं। और आप फरमाते हैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह इसी किताब अखबारुल अखियार में फरमाते हैं कि मैं गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला की जो है करामत के बारे में पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उनकी करामतों को अपनी किताब पर जमा करूं तो कसम खुदा की एक वक्त गुजर जाएगा, मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन उनकी करामत के बारे में नहीं लिख पाऊंगा। आप फरमाते हैं और सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला के बारे में कहते हो, आपके तकवे की बात करते हो, आपकी रियाजत और मुजाहिदे की बात करते हो, आपकी इबादत की बात करते हो। सुनो, सरकारे गौसे आजम खुद फरमाते हैं एक मकाम पर कि मैंने 15 साल तक रात के ईशा की नमाज के बाद एक पैर पर खड़े होकर के कुरान मजीद मुकम्मल किया है। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक हफ्ता, एक साल नहीं, बल्कि 15 साल इबादत करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने 40 साल तक ऐसी इबादत की है, 40 साल तक मैंने ऐसी इबादत की है कि कसम खुदा की मैंने रात के वक्त जो है ईशा का वजू बनाया है तो फजर की अजान तक जो है नमाज तक मैं इबादत नहीं रहा। मैंने ईशा की नमाज में ईशा का जो वजू बनाया था, मैंने फजर की नमाज पढ़ ली है। पता क्या चला, सरकारे गौसे आजम क्या सोए नहीं होंगे, हजरत बैठे हुए हैं। जब इंसान सो जाता है उसका वजू टूट जाता है, तो सोचो सरकारे गौसे आजम ने इंसान क्या है कि 40 साल तक आपने ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। आप फरमाते हैं कि मैंने 1 साल तक मुतवातिर पानी नहीं पिया। फिर फरमाते 1 साल ऐसा गुजरा कि मैंने खाना नहीं खाया। फिर फरमाते 1 साल ऐसा गुजरा ना तो मैंने पानी पिया था, ना तो मैंने खाना खाया था। ऐसे आलम मेरे साथ गुजरे, मैं जंगल बयाबान में चला गया था। और आपकी वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं, ए गौसे गैब से आवाज है कि ए गौसे आदम, तुम जानवर की धूम पकड़ रहे हो, जानवरों को खिला रहे हो, तुम इसके लिए नहीं आए हो, बल्कि तुम दीन की तबलीग के लिए आए हो। बोलो सुभान अल्लाह। आप जाते अपनी वालिदा मोहतरमा के पास, कहते हैं ऐसे मामला मेरे सामने आ रहे हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा आपको दीन तबलीग की इजाज़त की नस्ल और इजाज़त के लिए कहती है आपको इल्म तो हासिल करना पड़ेगा। तो आप कहते हैं मैं राजी हूँ। आप अपनी वालिदा मोहतरमा के पास से इजाज़त लेते हैं और बगदाद मोहल्ला की तरफ चले जाते हैं। और सरकारी गौसे आजम की वालिदा कहती है, बेटा जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो 80 रुपया छोड़कर जो दुनिया से रुखसत हुए थे। फरमाते कि आप मेरे भाई बरादर वकार जो मेरे भाई थे 40 रुपया उनके लिए रख देती है और 40 रुपया मेरे बगल में जो है कुत्ते मुबारक में सी रहती है और कहती बेटा निकल तो रहे हो, घर को छोड़ रहे हो, अपने माँ को छोड़ रहे हो,
ने कहा था, बेटा जाग रहे हो लेकिन मेरी कुछ तलकीन है, मेरी कुछ जो है आपको वसीयत है कि जब आप जाइएगा तो आप जो है रास्ते में रहिएगा, कहीं भी रहिएगा, लेकिन आप झूठ ना बोलना। सरकारी गौसे आजम जो चलते हैं और एक काफिले में चले आते हैं जो बगदाद शरीफ की तरफ जा रहा था, रास्ते में उस काफिले में मिल जाते हैं और जो है उस काफिले में कुछ डाकू आ जाते हैं और काफिले को जो है लूट लेते हैं। लेकिन सरकारी गौसे आजम की बारगाह में आता है एक डाकू, कहता है गौस एक शख्स तुम्हारे पास कुछ है क्या? तो कहते हैं हाँ मेरे पास 40 रुपया। बोले सुभान अल्लाह, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सोचता ही मजाक कर रहे हैं और वो अपने सरदार के पास जाता है, तमाम काफिला लूट किया जाता है और जब सरकारी गौसे आजम की बारगाह में फिर जाता है तो फिर कहते हैं मेरे पास 40 रुपया है। वो कहते हैं ये दीवाना हो गया कि मजनू हो गया मादल्ला अस्तगफिरुल्लाह। बल्कि वो कहते हैं कि नहीं चलो मेरे सरदार के पास चलो। सरदार कहता है कि बताओ बार बार आप कह रहे मेरे पास 40 रुपया है, वाकई तुम्हारे पास रुपया है? कहा मेरी तलाशी लो। तलाशी दी जाती है लेकिन नहीं निकलती है। आप अपना कपड़ा मुबारक फाड़ते हैं, फाड़ करके 40 रुपया दे देते हैं। ये मेरे गौसे आजम है, ये मेरे गौसे आजम है। फरमाते हैं तमाम के तमाम लोग वहां पर मौजूद हो जाते हैं और ऐसी हैबत आ जाती है उस सरदार के अंदर जो चोर था, डाकू का सरदार था, उसके अंदर ऐसी हैबत आ जाती है। वो कहता है कि मैं कितना नामदार हूँ, ये तो अपने कहते हैं ये तुमने सच्चाई का रास्ता तुमने कहाँ से सीखा? कहा मैंने अपनी वालदा मुसलमान से सीखा है। कहा मेरी वालदा ने कहा झूठ ना बोलना। कहा जब तुम किस मसलक से हो, तुम किस धर्म से हो? कहा मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान को मानने वाला हूँ। कहा जब तुम मुसलमान हो, जब नबी के चाहने वाले जो इतने सच्चे दर्जे के हैं, इतने सच्चे हैं, तो तुम्हारा नबी कितना अच्छा होगा, तुम्हारा नबी कितना सच्चा होगा, तुम्हारा मजहब इस्लाम कितना सच्चा होगा। वो डाकू सरदार रहता है मुझे कलमा पढ़ा दो। बोलो सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा दिया जाता है और तमाम के तमाम उनके साथी जो होते हैं, डाकू के जो सरदार के साथ चल रहे होते हैं, वो सब अलग जाने लगते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जब तक मैं दुनिया में पास रहा, डाकागिरी करता रहा, चोरी करता रहा, तमाम पूरे फौज के पास रहा। आज जब तुम दीन के रास्ते पर चल रहा हो तो मैं तुम्हारे साथ ना जाऊं? तो कहते नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। कल तक मैं तुम्हारे साथ चोरी और डाकू और रहजनी करता था, आज तुम अल्लाह की तरफ जा रहे हो, आज तुम जो दीन इस्लाम की तरफ जा रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये देखो गौसे आदम है, अभी इल्म हासिल नहीं किया है, अभी मदरसे की तरफ चल रहे हैं, लेकिन देखो सरकारी गौसे आदम की ताकत और कुव्वत का आलम जानो, उनकी ज़बान मुबारक का आलम जानो कि आप ये जरा से कितना कहते हैं कि मैं सच्चाई के रास्ते पर हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। सिर्फ इतना बात कहा था, सुन के सहाबा की बातें, जब लोग मुसलमान होते थे, जब ये सुन के सहाबा की बातें, जब कुफार मुसलमान होते थे, हमें जब इस पार का आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? ये सामने गौसे आदम है। सरकारी गौसे आदम को नहीं कहा जाता है। नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर शदाबे मिल्लत, जनाब मौलवी रब्बानी इत्तिहाद किबला, अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत। आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातो व सलाम अलैका सय्यिदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकारी गौसे आजम है और आज उन्हीं के नाम का हम लोग चर्चा मुनक्किद करेंगे। आज हम उन्हीं के लिए घर पर फातिहा करते हैं, नज़र नियाज करते हैं, लेकिन हम सरकारी गौसे आजम को इस तरीके से इसलिए नहीं मानते हैं, बल्कि सरकारी गौसे आजम ने इल्म भी हासिल किया है और तकवा भी किया है, तहारत भी हासिल की है और मुजाहिदा भी किया है, रियासत भी की है और गरीब परवर भी है। आपने गरीबों की मुश्किल कुशाई की है, आपने गरीबों का बहुत साथ दिया है। आप खुद फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं सवारी के साथ रवाना हो रहा था, अचानक मैंने क्या देखा, बहुत गरीब गुरबा लोग सड़क के किनारे पर खाना खा रहे थे, सलाम घुमाते। लेकिन जब मुझको देखा, पता नहीं क्या मोहब्बत अल्लाह ताला ने उनके अंदर डाल दी कि मुझको सलाम करने लगते हैं और कहते हैं कि हे गौसे आदम आप मेरे पास आ जाइए, आप भी मेरे साथ खाना तमाम कर लीजिए। तो आप देखो, आप अपनी सवारी से उठ करके उतर जाते हैं और गरीबों के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। ये गौसे आदम है। सरकार गौसे आदम की शान बहुत अरको वाला है और वक्त भी हो रहा है, इसलिए मैं अपनी तकरीर को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।